Lesson number 3, Ranga's marriage. Masti Venkatesha Iyengar. Lesson number 3, Ranga's marriage. Masti Venkatesha Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? Introduction. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage. Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana. Kalyana means Kalyanam. Kalyanam means marriage. But then, this is not about Jagannatha's victory or Giriraja's wedding. It is about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. Hoshahalli is our village. You must have heard of it. No? What a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England, written in English, probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. Flock means group. Jund. Sheep and a bird. One sheep walks into a pit. The rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to pull it on the map. Can you? Cartographer, one who makes the map. And so there is not even the shadow of our village on any map. छोटे छोटे जगह मैप में दिखाई नहीं देता, और उसके बारे में मैप बनाने वाले को जानकारी नहीं है तो बना भी नहीं सकता, और इसलिए ज्योग्राफी बुक्स में इसको ढूंढे तो नहीं मिले. इसी वजह से हमें होशहल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं है. राइटर खुद कहते हैं ये हमारी गलती नहीं है, वो जो मैप बनाने वाले उसमें डाला नहीं, उसी की गलती है. बट द प्लेस इज देयर. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर and then went off in another direction. माफ़ करना, मैं शुरू हुआ कुछ, पहुंच गया कुछ और. And if the state of Mysore is to Bharatavarsha what the sweet Karigadabu is to a festival meal, then Hoshahalli is to Mysore state what the filling is to Karigadabu. जिससे मैसूर भारतवर्ष का एक भाग है, इस तरह से करिगडबू होशहल्ली का एक पार्ट है. उस समय कर्नाटका को मैसूर स्टेट कहता था, उस समय की बात है. करिगडबू के बारे में लिखा है, यह साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर. What I have said is absolutely true.
Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of होशहली. मैं होशहली के लिए जो बताया, it is a true fact. माप बनाने वाले इसके बारे में नहीं लिखा, इसलिए people don't have any idea about it. वहाँ के लोगों में है, लेकिन the other people they do not know about it because it is not in the geography map. We have a doctor in our place. His name is गुंडाबट्टा. एक डॉक्टर है हमारे, नाम गुंडाबट्टा. स्पेलिंग देख लेना. He agrees with me. वो मेरी बात को मानता है. He has been to quite a few places, क्योंकि वो कई जगह घूमे हुए आदमी है. No, not England. लेकिन इंग्लैंड में तो गया ही नहीं. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, अन्नैया. अगर कोई पूछे तो इंग्लैंड का कोई जगह जानते हो क्या? No. अन्नैया मीन्स in Kannada a respectable term for elder brother. I have left that to you. मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया. Running around like a flea-pested dog is not for me. कुत्ते को परेशान करने वाला कोई मक्खी जैसा व्यवहार में नहीं कर रहा हूँ. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact, he has seen many. मैं भी मेरे जीवन काल में कई जगह देखा, वो भी अपने स्तर से कई जगह देखे आए. We have some mango tree in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. हमारे गांव में एक मैंगो ट्री है, उसके बारे में बता सकता हूँ बिकॉज आई नो अबाउट इट. अगर आपका विश्वास नहीं हो रहा है तो यू कम हियर, आई विल गिव यू सम. डू नॉट ईट इट, लेकिन खाना मत. जस्ट टेक ए बाइट, थोड़ा सा टेस्ट करके देखना. द सवरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा. उसकी जो खट्टाई है ना, नाक के अंदर घुस जाए, इतना खट्टा लगता है. इन कन्नड़ा, द सॉफ्ट पार्ट इन ए चाइल्ड्स हेड आर स्कल बोन्स joined later. Here used as an idiomatic expression to convey the extreme potency of sourness. कभी कभी हम भी कोई ऐसे ज़्यादा खट्टा वाला चीज़ चाहे तो बस हमारा मुंह का रिएक्शन देके पहचान लेता वो इस तरह का मतलब चीज़ है. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. एक बार मैं ये गाँव ले गया था, घर ले गया था, वहाँ चटनी बनाए. All of us ate it. हम सब खाए. The cough we suffered from after that. उसके बाद सब खांसना शुरू कर दी. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. जब मैं कफ सिरप लेने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इस मैंगो का विशेषता बताया. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. जैसे हमारे गांव का मैंगो विशेष है, तो मान लो हर चीज़ें विशेष तो है ही सही. वी हैव ए क्रीपर. We have a creeper growing in our ever so fine water of the village ponds. हमारे गांव के एक तालाब है, उस तालाब में एक फ्लावर दिखाई दे रहे. इस फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड. खाने लायक है. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on with to serve the afternoon meal. अगर आप उस तालाब में नहाने जाओगे तो उस फ्लावर वाले जो पौधा का पत्ता तोड़ के लाओ, तो आफ्टरनून मील आपको उसी में आराम से खाने को मिलेगा. जैसे हम पत्तल धोने यूज़ करते हैं ना, इस तरह से जैसे केले के पत्ते
और इस तरह का ये तो वही है जो लोटस कहता है, उससे बड़ा होता है सोसन, लिली कहते हैं, वाटर लिली। उसका पत्ता बहुत बड़ा है, फ्लावर भी बहुत बड़ा है, तो वो पत्ते में हम आराम से खाना खा सकता है। ये मतलब विशेष बात है ना। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप तो कहोगे मैं तो फालतू यूँ बोलते। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप, लोग सब यही कहते हैं जब हम गांव के बारे में बताते। बट इनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी ए लाइन। अगर आप में से कोई ये जानना चाह रहे हो, हमारे गांव में आना चाह रहे हो, तो पहले मुझे चिट्ठी लिखे। आई विल लेट यू नो वेयर हॉस्टेली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। पहले मैं जानकारी दूँ कि हमारे गांव कैसे है और वहाँ क्या क्या विशेष चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? अगर किसी जगह के बारे में जानकारी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि उस जगह विजिट कर लो। बट आई एम गोइंग टू टेल यू ये समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। 10 साल पहले की कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। एंड वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। उस समय हमारे गांव के ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आते। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने अपने बेटे को बेंगलुरु सिटी में पढ़ने भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, आजकल की बात अलग, उस समय की बात अलग। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। आजकल गांव की बात बताऊं तो अंग्रेजी जानने वाले तो बहुत है। During the holidays, you come across them on every street talking in English। विश्वास नहीं है तो एक छुट्टी के दिन में आ जाओ, लोग अंग्रेजी बोलते हुए नज़र आएंगे गली गली में। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking। उस ज़माने में कोई अंग्रेजी बोलते नहीं थे, आता है तो भी, और कोई अंग्रेजी शब्द बातों के बीच में लाते भी नहीं थे। कन्नड़ा में, कन्नड़ा बेंगलोर का कर्नाटका का भाषा है कन्नड़ा। कन्नड़ बोलते कोई, कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा। वाट हैज़ हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। जो भी हुआ बेकार हुआ, मान जाओ। द अदर डे I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood। दूसरा दिन में रामराव के घर पे गया when they bought a bundle of firewood। तब वो फायरवुड खरीद के लाए। जिसके घर पे पेड़ पर्याप्त नहीं है, वो जलाने के लिए लकड़ी खरीदते। आज के लिए गैस की व्यवस्था उस टाइम नहीं हुआ था। रामराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामराव का घर उसको पेमेंट देने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमन, हाउ मच शुड आई गिव यू? कितने हुए? 4 पैस, शी सेड। जो बेचने वाली ने बोला 4 आना। The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning। बालक उसे कहा कि चेंज नहीं है, कल आ जाना। The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself। बड़बड़ाती हुई वो घर चली गई क्योंकि उसको चेंज का मीनिंग समझ में नहीं आया। I too did not know, मुझे भी मालूम नहीं था। Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant। लेकिन मैं एक दिन अचानक रंगा का घर जाना पड़ा। वहाँ मैं रंगा से पूछा, अरे ये बताओ ये चेंज का मीनिंग क्या है? तो फिर उसने समझाया, भाई चेंज तो यही है। वैसे चेंज को बहुत मीनिंग है। हाँ, जो बड़े नोट है हमारे पास, हम कम पैसा में चीज़ खरीदा तो हम कहते हैं चेंज नहीं है।
कपड़ा चेंज करने के लिए, बदलने के लिए चेंज करते, मौसम बदल जाते हो और उसको चेंज करते, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर। तो आप लोगों को बताने का ज़रूरत है ही नहीं। द प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डेकेड अगो। 10 साल पहले तक, एक डेकेड मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक हमारे गांव में अंग्रेजी लैंग्वेज का फैलाव तो नहीं हुआ था। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा बेंगलुरु से घर आया तो एक विशेष बात बन गया। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम। लोग इकट्ठे हो गए उसके घर पे, चिल्लाने लगे, छोरा आगे पढ़ाई करके। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलुरु फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स and come, Ranga is here, let us go and have a look। वो छोरा है ना रंगा, बेंगलुरु पढ़ने के लिए गया था, वो आए हुए, आ जाओ देखते कैसा है। लोग सोचते होंगे बाहर जाके लोग बदल के वापस आ जाते। आजकल तो पहचान में भी नहीं आए, बाल का कटिंग, कपड़े का हिसाब किताब, दाढ़ी बीड़ी सब कुछ देख के पहचानेगा ही नहीं। लेकिन इसके बारे में क्या देखो। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। लोगों का भीड़ देख के मैं भी वहाँ चला गया, उसके बीच में खड़े होकर बोला, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। अरे ऐसे क्यों इकट्ठे हो रहे हो, कोई मंकी का खेल चल रहा है क्या यहाँ। ये बॉय, ये फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड loud enough for everyone to hear, what are you doing here then। एक छोरा मेरे से पूछा, अगर कोई खेल नहीं हो रहा तो तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों आए। ये यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, वो एक छोटा सा था, मैनर्स नहीं था, इतना मैच्योर भी नहीं था। ऐसा सवाल करना कोई बुरी बात तो है नहीं। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet। इस तरह का सोच बीत गए, अब उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face। इतने लोग उसके घर पे इकट्ठा हो गया तो वो बड़े खुशी से बाहर निकला है। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta। कलकत्ता का ब्लैक होल जैसे लोग इकट्ठा हो गए, चले अपन अंदर। थैंक गॉड इट डिड नॉट। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। 6 महीने पहले छोकरा कैसा था वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम ran her hand over the chest, looked into his eye and said। एक ओल्ड लेडी उसका शरीर में हाथ लगा के देख ली और कहने लगी, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेवर होते हैं ना जो ब्राह्मण लोग जो गले में डालते हैं डोरा, वो तो यहाँ है। इसका मतलब ये बदला ही नहीं। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसका मतलब वो धर्म तो बदला ही नहीं। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वो खुश हो गई। उसको तो केवल इतना ही चाहिए था, भले ही लोग कहीं भी जाएं, अपना धर्म बदलना नहीं है। रंगा को हंसी आई। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। लोग धीरे धीरे रंगा को देखे, हाँ वो वैसे ही, कोई बदलाव नहीं है जानकर धीरे धीरे जो छोटे बच्चे चीनी मुंह में डाल के चूसते हैं वैसे गायब होने लगा। आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर, मैं तो वहीं खड़ा ही रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, सब चले जाने के बाद मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, कैसे हो, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, सब ठीक तो है ना। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा मेरी तरफ देखा। He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessing।
वो सामने आया, नमस्ते किया। अजी साहब आपके कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I must drive your attention to this aspect of Ranga's character. मैं रंगास के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess the people's worth. वो जानता है लोगों से कैसे कैसे बातें करने। As for his namaskara to me, he did not do it like any present-day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole, without joints, jerking his body as if it was either a band or a walking stick. उसने नमस्कार कैसे किया मालूम है? आजकल के जो बच्चे तो जैसे कहते हैं वैसे नहीं है, सीधे खड़े होकर सिर ऊंचा करके ऐसे नमस्ते करते, नमस्ते ओ, ऐसा नहीं है। Nor did he merely fold his hands, केवल हाथ जोड़ा ही नहीं है। He bent low to touch my feet, वो हाथ जोड़ा, मेरा पैर छुआ। May you get married soon, I said, blessing him. जैसे मेरे पैर छुआ तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तुम्हारी शादी भी हो जाओ जल्दी। After exchanging a few pleasantries, I left. थोड़ा इधर उधर की बातें कह के मैं चला गया। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hands. उसी दिन दोपहर की बात है, रंगा मेरा घर पे आया ऑरेंज लेके। ये couple of oranges, दो। ये generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. जब वो आए तो मैंने सोचा ये आदमी अभी शादी करके पारिवारिक जीवन में प्रवेश करें तो अच्छा है, और इस तरह से वो गांव का सेवा भी करें। For a while we talk about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? थोड़ी देर बाद बातें करते रहा, उसके बाद मैं पॉइंट में आया। रंगप्पा, शादी कब करोगे? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो उसने बोला, अजी भाई साहब तो मैं अभी शादी के लिए सोचा ही नहीं। वाई नॉट? क्यों? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। उसके लिए तो सही लड़की ढूंढना तो पड़ेगा ना। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months। मैं क्यों कह रहा हूँ पता? 6 महीने पहले एक ऑफिसर की शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। वो करीब 30 के और उसकी पत्नी करीब 25 के। आई एम टोल्ड, मैंने ऐसा बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। Let us say I married a very young girl. She might take my words spoken in love as words spoken in anger. इसलिए अगर मैं एक छोटी सी लड़की से शादी का प्रपोजल रख के बातें करूं तो मजाक समझेगी। She may take my words spoken in love as words spoken in anger. मैं प्यार से उसे कुछ कहूँ तो वो सीरियसली लेंगे, गुस्से में उसको रिएक्ट करें। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेड द प्ले शकुंतला। एक नाटक भी देखा मैंने। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वेयर यंग। दुष्यंता शकुंतला से शादी करने का प्रपोजल रखना उस बात तक सही है जब वो छोटी नहीं। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, दैट वुड हैपन टू कालिदास प्ले।
ये तो कहानी के द्वारा लिखी गई बात। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर। अगर कोई शादी करे तो वो एक मैच्योर लड़की से होना चाहिए। जैसे शकुंतला के सामने दुष्यंत आके बोला मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो शर्म से बस उसकी बातों पर आ गया और शादी भी कर दिया, वो चला भी गया। पर बाद में कितना पछतावा हुआ था। बाद में वो पति मानने को तैयार ही नहीं था, वो भूल ही गए। और इस तरह जब राजा बनने के बाद उसको नीचा देखने लगा। तो ये सारी कहानियाँ दुष्यंत शकुंतला की कहानी में लिखा है, पढ़ के देख लेना तो पता पड़ेगा क्या थी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी को शादी करनी है तो वो लड़की मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर। अन्यथा शादी नहीं करनी है, कुंवारा ही रहे। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। इसलिए मैंने कहा मैं अभी शादी नहीं करूँ क्योंकि इतना मैच्योर नहीं हुआ। इज देयर एनी अदर रीजन? और कोई बात? ये मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। दूसरी बात है ये मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। वो किसको रिस्पेक्ट देना चाहते, किसका तारीफ कर देते, उसी लड़की से शादी होनी है। एक अनजान लड़की से जाके शादी करके आए और उसी दिन से लड़ाई हो जाए तो क्या मतलब है। इसलिए समझदारी से शादी करनी होती है। वट वी हैव नो आर अरेंज्ड मैरिजेस। आजकल तो होते हैं ना जो अरेंज्ड मैरिज। हाउ कैन नॉट एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्ट्रेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। ऐसा लड़की से कैसे शादी करें, उसको शर्म करने ही नहीं आता और उसकी जो बचपना ख़त्म ही नहीं हुआ, तो ऐसा लड़की से शादी करके करना क्या है। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड। एक तो नीम फ्रूट और दूसरा बिटर गार्ड। नीम फ्रूट है ना नीम का फ्रूट और दूसरा बिटर गार्ड है ना करेला। एक्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। रंगा को ये बात सुनते ही हंसी आई। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा मेरी बात मान जाएगा छोरा, लेकिन वो मेरे को समझाने लग गया कि भाई साहब तो ऐसी ऐसी बात है, ये सही है तो शादी सही है, नहीं है तो सही नहीं है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ा बहुत बातें करके वो चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। अच्छा, छोरे का मन में ऐसी विचार है तो देख लो मैं इसका शादी करवाते रहूँगा, किसी भी तरीक़ा से मैं इसका शादी कराऊँगा ही कराऊँगा, चाहे वो कितना भी आइडियोलॉजी रखे। रामराव सिन्नीस, ये प्रची गर्ल ऑफ 11 had come to stay with him। रामराव की एक नीस है, भतीजी है, उसके घर पे मिलने आई हुई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन। शहर की लड़की है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। उसको वीणा और हारमोनियम बजाने आती है। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस। उसकी आवाज़ भी अच्छी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। उसके माँ बाप शांत हो गए। And brought her uncle. And her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her, he said, and she the most suitable bride for him. तो उसने सोचा ये लड़की तो उसके लिए पर्याप्त है।
मैं तो व्यवस्था कर ही दूंगा. Since I was a frequent visitor in Ram's place, the girl was quite free with me. मैं रामराव के घर पे बार बार जाता था, इसलिए तो हमारा बीच में व्यवहार अच्छा था. I completely forgot to mention her name. अरे मैं नाम बोलना भूल गया. रत्ना, it was रत्ना नाम थे उसके. The very next morning I went to their house and told Ram Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. दूसरा दिन I went to their house and told Ram Rao's wife. उसके घर पे जाके राम राव के पत्नी से बोला, मैं थोड़ा बटर मिल्क भेज देता हूँ, चाच छोरी को भेज देना, आके ले जाएं. रत्ना गेम, वो आ गई. इट वॉज ए फ्राइडे का दिन. सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी पहन रखी थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग. तो मैंने बोला, बेटा मेरा कमरे में बैठ जाना और एक गाना गा लेना. आई सेंड फॉर रंगा, इसका पीछे में रंगा को बुलाया. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच्ड द डोर. वो कृष्णमूर्ति से शुरू होने वाला गाना गा रही थी, तो रंगा भी उसी टाइम वहाँ पहुँच गए. ही डिड नॉट वांट टू सिंगिंग टू स्टॉप. ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड. आंगन में रुक गए, क्योंकि वो उसके गाने में कोई रुकावट लाना नहीं चाहा. बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर. लेकिन इतना तो जिज्ञासा तो था कि कौन गा रहे. केयरफुली ही पीप्ड इन. वो चुपके से देख लिया कौन है ये, क्योंकि ये ऐसी लड़की पहले इसके घर पे तो दिखाई नहीं थी, फिर ये आज कैसे आई, वो भी गाना गा रही है यहाँ बैठ के. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड. जैसे वो दरवाजे के पास खड़े हो गया तो अंदर रोशनी थी, तो वो रुकावट आ गई. रत्ना लुकड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड. उन्हें एक अनजान नजर आया, तुरंत वो गाना ही बंद कर दी. सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगोज, यू ईट इट स्लोली, savoring its peel before biting it the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. मान लो तुम एक मैंगो खा रहे, अगर तुम्हें अच्छा लगा वो धीरे धीरे तुम पूरा तो खा जाओगे. बिफोर यू टेक अनदर बाइट, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. टेस्टी मैंगो हाथ से फिसल के नीचे गिरा तो क्या करोगे? हाउ डू यू फील? कैसा फील होगा? रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. जैसे गाना रुक गए तो ये उदास हो गए. You sent for me? He asked as he came in and sat on the chair. वे अंदर जाके बैठ गया तो पूछा, आजी साहब बुलाए थे क्या? रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड. रत्ना खड़ी थी सिर झुका के. रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर. रंगा चुप के चोरी को देखने लगा. वंस आवर आइज मेट. बीच में हमारा आंखों से मिल गए. एंड ही लुक्ड वेरी एम्बारस्ड. वो एकदम सरप्राइज हो गए. नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग टाइम. बोली बंद हो गई, कुछ बोला ही नहीं. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लिव. तो कहने लगा, अगर मेरे आने से गाना बंद हो गए तो कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा हूँ. वर्ड्स, मियर वर्ड्स. छोकरा नाटक कर रहे. द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव. जाने के लिए कह तो रहे लेकिन जा ही नहीं रहे. हाउ कैन नॉट एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज टू कलियुगा. कलियुगा का शब्दों का भी हिसाब किताब कैसे अनुमान लगाए लोग. इस तरह से देखा, अगर किसी को कोई पसंद आ गया तो यही हालत हो जाता. सीख ले रंगा को देखे. रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस. रत्ना को ये सुनते ही हंसी आई, शर्म आई. वो अंदर की तरफ भागी.
आजकल की लड़की कोई शर्म नाम की चीज़ है क्या? होता होगा किसी किसी में, लेकिन आजकल तो सब बोल्ड बनकर ऐसे रहते हैं। गांव वाली लड़कियां वैसे तेज होती है बताते। तो यहाँ भी ये चीज़ हम देख सकते हैं। ये उसको भी ऐसी लड़की चाहिए ना जो बातों पर शर्म आती है, जहाँ शर्म आनी चाहिए वहाँ शर्म आती है, ऐसे लड़की चाहिए। तो वैसे एक लड़की मिले तो वो शादी करेंगे तो पहले ही बताया था, ऐसे बात तो बनता है। आफ्टर ए वेल रेंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। तो थोड़ी देर बाद पूछा, अजी साहब छोरी कौन सी है? हु इज़ दैट इनसाइड द लाइन वांटेड टू नो। शेर जानना चाहते अंदर कौन है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम? आई एम ए पुअर एनिमल हु वाज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस। बताओ मैं कौन हूँ? मैं ऐसा शेर हूँ 9 गोट को तक खा चुका। आई हैव वाउड टू ईट वन मोर। मुझे एक और खानी है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल? बताओ तो मेल है फीमेल है? द लायन फ्लड द प्लेस इन फियर इट सीम्स। सुनते ही भागे। लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू एदर ऑफ अस हु शी इज? अरे हमें क्या लेना देना है वो लड़की कौन है कौन नहीं है? तुम्हें तो शादी करनी नहीं है, मेरी बात तो मानेगे नहीं। तो कोई लड़की मैं तो वैसे शादीशुदा हूँ, तो वो लड़की कोई भी हो तो मेरा क्या है तुम्हारा क्या है? आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरी काइंड। मैं तो वैसे शादीशुदा हूँ और तुम्हें शादी करनी नहीं है, तो लड़की कौन है क्यों पूछ रहे हो? वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड देन? अच्छा वो शादीशुदा नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसका मन में जान जी लिया, वो लड़की उसको पसंद आ गई। अब बोलूँ कैसे? तो मैंने डिसाइड किया थोड़ा नाटक कर रहे। शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो। 1 साल पहले उसकी शादी हो गई। His face shriveled like a roasted brinjal. जला हुआ ब्रिंजल जैसा, ब्रिंजल यानी बैंगन जैसा हो गया उसका चेहरा, लुढ़क गए। आफ्टर ए वाइल रेंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो आई हैव वर्क टू। मूड खराब हो गया उसके। अजी साहब मैं जा ही रहा हूँ, घर पे काम है। होता है ना, कोई लड़की पसंद आ गया तो बोलते हैं या तो उसकी सगाई होगी या तो उसकी शादी होगी, अभी अभी हुई शादी, 1 हफ्ते पहले हुई, 1 महीने पहले हुई, ये सब बोला है तो थोड़ा उदास तो होता ही होता है। यहाँ भी वही हुआ। आई फाउंड नो चांस इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उस दिन फिर से हमारा मुलाकात हुआ। रंगा थोड़ा उदास था। व्हाट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट। आई सेड, क्या हुआ यार? तो बड़ा सोच में पड़ गया। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हेडेक, कम लेट अस गो एंड सी द डॉक्टर। क्यों सर दर्द हो रहेगा? डॉक्टर से मिलने चले?
I have no headache. I am my usual self. नहीं नहीं, मुझे कोई हेडेक नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. अरे मैं भी लड़की देखने गया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. But I don't think that could be a reason for your present condition. मुझे ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हारे स्थिति भी ऐसा हो गया. रंगा स्टेयर्ड एट मी. रंगा मुझे घूरने लग गया. कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड. चलो हम शास्त्री जी से मिलने चलते हैं. वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट. हम जाके हमारा कुंडली थोड़ा देखते हैं कि गुरु शनि की स्थिति क्या है. रंगा अकम्पनीड मी विथ माई प्रोटेस्ट. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." जब शास्त्री जी के पास पहुंच गया तो उसने पूछा, अरे वाह, क्या हुआ? अरे बहुत टाइम हो गया मिले, आज कैसे? Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. Shyama ये कहानी हमसे बताने वाला ही है. नरेटर आई करके जो बताया था तो वही है. आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट? ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस. यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. क्यों? आज सुबह तुम तुम्हारे सारे काम पूरा करके मेरे से मिलने आए. कुछ रहस्य बात वो छिपाना चाह रहे इनके सामने, रंगा के सामने. शास्त्री टर्न टू रंगा. When did you young son of our accountant clerk come home? अरे भैया तुम कब आए घर? जबकि उसको पता है दोनों के बीच में बात हो गई है, लड़की के बारे में कुछ बात चली है, लेकिन उसके सामने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए और उसको उल्लू बनाने के लिए कुछ पीछे से बात करे, अनजान बन के बात कर रहे. अरे तुम कब आए? What can I do for him? It is a very rarely that he visits us. अरे ये अकाउंटेंट का बेटा है ना, ये आज कैसे आ गया? क्या मेरे से कोई काम है? ये कभी हमारे तो आते ही नहीं. टेक आउट योर पैराफर्नेलिया. पैराफर्नेलिया मीन्स सामग्री, वस्तुएं. अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड. अरे तुम्हारा वो जो कुंडली देखने का चीज़ है ना, वो ला के बताओ तो इनके मन में कुछ है. कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम? इनका मन का चिंता क्या है, कुछ बता सकते हैं? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट. और एस्ट्रोलॉजी देख के जरा बता सकता है. देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री. He took out 2 sheets of paper, some coverings, and a book of palmyra leaves. खजूर के पत्ते. But I want to tell you that story now. This is not a harikatha which allows you to tell a story within a story. एक कहानी से दूसरा कहानी बनाने का चीज़ नहीं है. You may get bored. I will tell it to you some other time. फिर कभी बता देंगे. Shastri moved his lips fast as he continued on his fingers and then asked, "What is your star?" पंडित जी थोड़ा दिमाग लगाए पूछा, आपका स्टार क्या है? रंगा डिड नॉट नो. नेवर माइंड. रंगा ने बोला मुझे पता नहीं.
कोई बात नहीं. Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculation before saying in a serious tone, "It is about a girl." देखो तुम्हारा स्टार कुछ भी हो, तुम्हारा मन में एक लड़की बसे हुए, सही है ना? I had been controlling my laughter all this while. मुझे हंसी आ रही थी. But now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. वो अब हंसी लिया. तो कहते हैं ना, कोई हंसी आ गया तो रोकना नहीं, हंसना है. तो मैं रंगा से बोला, मैंने बोला था ना तुम्हारे मन में कुछ तो है ही, सही, वो भी लड़की. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. कौन है लड़की, बता. Shastri thought for a while before replying. She probably that the name of something found in the ocean. वो लड़की का नाम समुद्र में दिखाई देने वाला कोई पौधा जैसा है. कमला, कमल होते हैं ना पानी में, मे भी हो सकता है. Could it be पच्चीमोस? पच्चीमोस तो नहीं. Must it be moss if it is not कमला? हाँ, कमला नहीं है तो मोस हो सकता है, वो भी पानी में. वाई नॉट पेड़ और रत्ना, पानी में मोती भी दिखाई देते, रत्ना भी दिखाई देते. द प्रेशियस स्टोन, रत्ना. द गर्ल इन राम राउस हाउस इज रत्ना. उसके घर पे जो लड़की है रत्ना नाम है उसका. टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशन बेयरिंग फ्रूट? हमारे जो मुलाकात कोई काम का है? डेफिनेटली इज इट. आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस. रत्ना का नाम सुनते ही रंगा का चेहरा में बदलाव दिखाई दिया. एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस इट. खुश हो गए वो. बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड. लेकिन वो छोरी की शादी हो गई. देन आई टर्न टू हिम. हिज फेस गॉट बर्न. तुरंत वो उदास हो गए. आई डोंट नो ऑल दैट. देयर में बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल. और कोई हो तो बता दो. आई ओनली टोल्ड यू वाट अवर शास्त्रा इंडिकेटेड. शास्त्री सेड. पंडित जी थोड़ा सीरियस होकर बोला, देखो भाई, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने बोला एक लड़की है, रत्ना नाम है उसके. वी लेफ्ट द प्लेस. ऑन द वे वी पास्ड बाय रत्ना राव's हाउस. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. जाते समय हम उसके घर के उधर से निकला, लड़की वहाँ खड़ी थी. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर. मैं अंदर चला गया और बाहर थोड़ी देर बाद आए. सरप्राइजिंग, द गर्ल इज़ नॉट मैरिड इट सीम्स. अरे यार बताऊँ, वो छोरी के बारे में जानकारी ले ली, वो शादीशुदा नहीं है. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज. किसी ने मेरे को बताया तो ये शादीशुदा है. व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. शास्त्री जी बिल्कुल सही बोले यार. बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. तो उसी के बारे में सोचा तो नहीं है ना? स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड? तो इसी लड़की के बारे में सोच रहे थे ना? कसम खा ले माधवाचार्य का नाम से. आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. Ranga admitted. There is greater truth in that Shastra than we imagine. देखो, हम कल्पना करने से अधिक हटकर शास्त्र में मीनिंग है. शास्त्री जी ने जो भी बताया बिल्कुल सही है. What he said is absolutely true. उसने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया. शास्त्री was at the well when I went there that evening. मैं उसी दिन शाम को उस शास्त्री से मिलने के लिए फिर गए. वो कुआं के पास खड़े थे. I said, so शास्त्रीगल, you repeated everything I had taught you without giving rise to any. मैंने जो भी सिखाया तूने वही बताया. बहुत अच्छी बात है. What a marvelous शास्त्रा yours is. तुम्हारा शास्त्रा बिल्कुल शानदार है यार. And he did not like it at all. लेकिन शास्त्री जी को थोड़ा बुरा लगा. What are you saying? What you said to me was that I could have found out myself from the Shastra. तूने क्या सोचा?
तूने जैसा बोला मैंने वैसा एक्टिंग किया? नहीं है यार, शास्त्रा में जो है वही बताया मैंने। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू आर गिवन में। हाँ, तूने जो हिंट दिया था मैं उसको भी इस्तेमाल किया। टेल मी, इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज? ऐसा कोई कह सकता है क्या? रेंगप्पा had come the other day to invite me for dinner. रेंगप्पा दूसरा दिन मुझे डिनर के लिए बुलाने आया। मतलब बीच में बहुत कुछ कहानियाँ हैं, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। व्हाट इज़ द ओकेशन आई सेड। मैंने पूछा किस खुशी में? इट इज़ श्यामास बर्थडे, ही इज़ देयर। श्यामा का बर्थडे है आज। इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड। श्यामा नाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच ए नेम? तुम्हारा प्यारा सा बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया? व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। दोनों कितने शरारती है। आई नो इट इज़ the English custom of naming the child after someone like you. Your wife is 8 months pregnant now. And who is there to help your mother to cook? हाँ समझ गए। तुम्हारी पत्नी 8 मंथ प्रेग्नेंट है, फिर खाना कौन बना रहे? माई सिस्टर कम विथ हर। मेरी बहन आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। मैं बर्थडे के लिए वहाँ गए, बच्चे आके मेरे गोदी में बैठा, मैं एक अंगूठी उसका उंगली में डाल के उसके गाल में पप्पी दिया। Allow me to take leave of you, reader. I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. Readers, मैं जाऊँ? मदद के लिए मैं तो यहाँ होगा, सही? बोर तो नहीं हुआ ना? नहीं भाई, नहीं, जाओ।